Okay. Now come back to this part. Okay. Come to geopolitical significance of European Union for India. Right. Now very simple lines में लिख लीजिए पहला both prefer geopolitical significance में both prefer nuclear non proliferation। जब भी कोई अच्छा बात हो तब कुछ ना कुछ हो जाता है। पहले पेमा क्वेश्चन पूछते थे फिर सुरांग, और जब पेमा और सुरांग क्वेश्चन पूछना बंद कर दिए तो फिर वीडियो बंद हो जाता है ना। Anyway, both prefer nuclear non-proliferation and advocates nuclear disarmament उसके बाद प्रमोट लिबरल डेमोक्रेसी। सेम विथ जापान का हमने जो लिखा प्रमोट लिबरल डेमोक्रेसी एंड यूएनएससी रिफॉर्म्स हो जाएगा। उसके बाद जियो स्ट्रेटेजिकली व्हाई these nations, why European Union countries are important for security purpose for India, for security reason, why do you think they are important? For security purpose, why do you think these countries are important for geo security point of view? बोलिए। अब ये कंट्री हैं, ये लोग डिफेंस वगैरह में ऑब्वियसली बहुत आगे होंगे, है ना। टेक्नोलॉजी कैपेसिटी बहुत आगे होगी, तो इसमें जब भी कुछ नहीं समझ में आए तो एक लाइन लिख लीजिए, काउंटर टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी में और क्या बोल सकते हैं, बहुत दूर है ये लोग तो खास वो लोग मदद नहीं करेगा उतना, बट स्टिल व्हाट एल्स कैन यू थिंक ऑफ। काउंटर टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर मदद करेगा। European Union is not that much known for this kind of political and security thing, it is mainly known for economic things, so let it be। Then geo-economic में होगा बहुत सारा चीज बोलने के लिए, बट एक चीज यहाँ पे लिख लीजिए, BTIA अग्रीमेंट। ए का मतलब अग्रीमेंट ही होता है। BTIA ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट। वेरी गुड। इसके बाद इसमें लिखिए रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड EU। रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड EU। इसमें लिखिए एक लाइन कि पोस्ट 2005 इंडिया एंड EU साइन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप which was based on 4 pillars
political, economic, social and defense, मतलब strategic and defense. However, their relationship only progressed however their relationship only progressed on the path of however their relationship only progressed on the path of economic engagement, as the European Union became the largest trading partner of India. Largest trading partner of India, full stop. In the present times, these countries, the India and EU, at the present time, these countries, India and EU, have almost India and EU have almost completed negotiations on BTIA. Which is supposed to be a landmark agreement between these two countries, although there are many issues which needs to be sorted out, especially related to trade. Full stop. Open the notes. Just after Russia, we will find it India and EU. Page number 19. Read the first paragraph. The relationship between India and EU is based on shared values and principles such as democracy, rule of law, rule-based order, multilateralism, etc.
The ties are multifaceted and cover a broad spectrum of topics including trade, investment, climate change, science and technology, digital connectivity and agriculture. More or less यही कहानी है इनका. क्लाइमेट चेंज के ऊपर लिख सकते हैं हम लोग जियोपॉलिटिकल में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, राइट. जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है दोनों का आपस में. उसके बाद कुछ एक पॉइंट है और उस पॉइंट में ज्यादा नहीं घुसिए, पेज को बदलिए. टर्न द पेज. Then there are areas of cooperation between India and EU. Make sure that you remember only the main heading. Main heading मतलब political partnership and geopolitical cooperation. Year कुछ भी नहीं फालतू याद करना है ना? That is not at all. Nobody can write those years, my friend. Nobody. I repeat, except the recent things. उसके बाद economic ties, defense, security and climate, science, research, maritime, ये वो ये सब चीज हो गया. Come to the challenges part. Challenges in India-EU relations. Trade barriers, political differences. What kind of political differences? इंडिया और EU के बीच में क्या political difference होगा? जैसे यूरोपियन यूनियन का जो अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन राइट्स को लेकर, that is different. तो यूरोपियन यूनियन के लीडर लोग हमेशा जब भी इंडिया कोई डोमेस्टिक डिसीजन लेता है तो वहां पे वो लीडर लोग एक कमेंट पास जरूर करता है, राइट, यूरोप का. क्यों है? बिकॉज there is a difference of understanding between the concept of human rights between India and European Union members. So that is one such difference. उसके बाद complex security, multilateral dynamics, climate goals अलग अलग है सबका, वो कुछ challenges हैं आपस में डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में. हमारा और यूरोपियन यूनियन का मोस्टली समझिए ऐसा कि फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड वाला डिफरेंस है ना. तो मोर और लेस यहाँ पे जितना इकोनॉमिक के मामले में हम लोग कोऑपरेट, क्योंकि इंडिया हैज अ वेरी ह्यूज डिमांड. अब जैसे जापान में क्या है, जापान में ओल्ड एज पॉपुलेशन इज देयर, सो जापान में डिमांड इज वेरी लेस बिकॉज यू सी हम लोग का फैमिली में आप देख लीजिए, पापा लोग को देखिए, बूढ़े लोगों को देखिए, कपड़ा फटा है, पुराना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना. फर्क हम ही लोग को पड़ रहा है. हम लोग क्यों हैं? हम लोग एस्पायरिंग जनरेशन है, राइट. वी आर एस्पायरिंग जनरेशन, वी आर एम्बिशियस जनरेशन, राइट. हम लोग को थोड़ा ब्रांड पसंद है मे बी, मान लीजिए, बट लुक एट तो सीनियर लोगों को देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ढीला मोट कैसा भी कपड़ा चल रहा है. तो जापान में पॉपुलेशन इज गेटिंग ओल्ड डे बाय डे. तो जापान के मार्केट में क्या है, डिमांड इज रिड्यूस्ड. सो दैट इज व्हाई इंडियन गुड्स आर नॉट फाइंडिंग अ प्लेस इन जापान, राइट. सेम सिचुएशन है यूरोपियन यूनियन के साथ. यूरोपियन यूनियन कितना भी मैन्युफैक्चर कर ले, यूरोपियन यूनियन नीड्स अ मार्केट लाइक इंडिया बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड, बिकॉज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ यंग पॉपुलेशन. यंग पॉपुलेशन ही एम्बिशियस होगा. यंग पॉपुलेशन नहीं है तो आपके यहाँ पे अर्बनाइजेशन ये सब चीज मैच्योर या बोल सकते हैं उसको हम लोग बहुत ज्यादा सैचुरेट हो चुका है. बट इंडिया में अभी दैट सैचुरेशन लेवल हैज नॉट कम, राइट. हम लोग को देखिए आपस में H&M जारा से नीचे भी वी डोंट टॉक. कंसेप्ट चला है सोबर कलर्स का, अलग अलग बहुत सारा ब्रांड है. मेन ये दो ब्रांड बहुत बिजनेस कर रहा है इंडिया में, देख रहे हैं, जारा, H&M, यूनिक्लो. एक चला यूनिक्लो अ ब्रांड, राइट, व्हिच इज गोइंग ऑन. ये सब एडिडास नाइकी आप लोग जितना पहनते हैं हमको लगता है पूरा मैंने जो बनाया होगा वो भी नहीं सोचा होगा कि मतलब औकात नहीं है, फिर भी लेट अस वियर, राइट. एडिडास नाइकी इन जनरल पहन रहे हैं खरीद के. और भी दो तरह का एडिडास आता है, नाइकी दो तरह का आता है. बड़ा बड़ा लिखा रहता है NIKE, राइट, एक नाइकी. और कुछ बहुत सटल सा होता है, ऐसा टिक मार दिए हल्का सा छोटा सा कहीं पे. तो दो तरह का टी शर्ट होता है. नया जब हम लोग जैसे लोग खरीदेंगे तो बड़ा वाला खरीदेंगे, तो लिखा होगा, दिखे लोग, राइट, पूरा एडिडास दिखना चाहिए. बाद में थोड़ा पहनते पहनते चीप लगने लगता है, तो हम लोग एक छोटा सा ऐसा साइन हल्का फुल्का है चलता है, राइट. पहनने के बाद क्या पहने हैं, कोई ढीला ढीला पहन लीजिए, कुछ भी कहाँ पता चल रहा है. कंफर्ट लेवल तो ढीला में होता है ना. फैब्रिक में क्या ही है, मोंटे कार्लो भी आता है 300 में, राइट. ड्यूक का भी आता है 200-300 में. पहले तो वही पहनता था आदमी. यहाँ थोड़ा ईटानगर आ गया है तो थोड़ा स्टेटस सिस्टम नहीं. बोलिए. हाँ क्या बात रुकवा दिए थे मोदी जी, बोलो बात. हाँ यूट्यूब पे
हम नहीं सुना है, बताइए हम क्या आंसर दिए थे हमको। मैं भी सुने हो, मतलब हमको एग्जैक्ट नहीं याद आता हो। क्या बोले थे हमारे फॉरेन मिनिस्टर? उसके स्टेटमेंट था कि यूज प्रॉब्लम इज नॉट वर्ल्ड प्रॉब्लम। हाँ हाँ हो यार, नहीं तुम सब नहीं, तुम सब बहुत एरोगेंस दिखाता है। Those are arrogant statements, right? EU's problem is not, EU problem is world's problem and India's problem is India's problem. इस तरह का कुछ बोले थे, ऐसा कुछ याद आ रहा है, याद आ गया, ठीक है। तो हम लोग का रिलेशनशिप अच्छा क्यों नहीं हो रहा है उसके बारे में लिखना है, तो यही सब एक रीजन भी है जिसकी वजह से रिलेशनशिप जो है अच्छा नहीं हो पा रहा है। ये सब नहीं लिखने देते, बट जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस में हम लोग बहुत सटल वे में लिख सकते हैं कि द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड द वेस्टर्न कंट्रीज, जैसे टेररिज्म के ऊपर उनका डेफिनेशन अलग है, टेररिस्ट का। ह्यूमन राइट्स में यूरोपियन यूनियन का डेफिनेशन अलग है ना। तो ये मेन प्रॉब्लम है बीच का। ये नहीं बोल सकते हैं कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई वो लोग ऐसा मानता है वैसा, हम लोग को सॉल्यूशन देना है तो ना। सो सॉल्यूशन देते समय दैट इज वन कैन वी कैन अवॉइड दैट बिकॉज़ एरोगेंट स्टेटमेंट है वो, जस्ट टू गेट नहीं जरूरत है तो। मोदी जी वाला हर्ष पंत, सी राजा मोहन, सुहासिनी हैदर, ये तीन आदमी हैं जिसको पकड़ के बैठना है। और इसमें भी दिया हुआ है ऑक्यूपेशन, राइट? यहाँ पे भी देयर इज गिवन। तो जस्ट 2-3 पीपल यू हैव टू पिक। सी राजा मोहन, सीआरएम, हर्ष पंत, हर्ष वी पंत, द कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस स्कूल के स्टूडेंट हैं इंडिया में, और सी राजा मोहन, ये दो आदमी को पकड़ लीजिए। सुहासिनी हैदर हिंदू में लिखती हैं। ये लोग 2-3 लोग हैं जो बहुत समझदार लोग। गेटिंग इट? ना चेंज द पेज, कम टू द रीसेंट डेवलपमेंट्स। रीसेंट डेवलपमेंट में इंडिया एक बॉक्स में देखिए, मोस्ट रिसेंट में इन 2023 EU एंड इंडिया सेट अप अ न्यू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। अब ये खाली अगर याद रह जाए बस, है ना, तो सफिशिएंट है। ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल कहने का मतलब है कि जितना भी सब्जेक्ट आपको याद आ जाए, साइंस का, टेक, क्लाइमेट चेंज, राइट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, पॉलिटिकल, ये जो भी एक दो टर्म अगर याद आ जाए तो सारा टर्म हर कंट्री के साथ काम आता है। हर कंट्री के साथ इंडिया प्रेजेंट टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ ना कुछ इंडिया करते जा रहा है, और यूरोपियन यूनियन के साथ भी इंडिया मोस्टली किया है। तो दीज थिंग्स जस्ट ऊपर ऊपर आपको कैजुअल चल रहा है, ज्यादा बाकी कुछ नहीं है। कम टू द कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड में सेकंड वाला कंक्लूजन पढ़िए क्रिश्चियन वैगनर का। क्रिश्चियन वैगनर says that realizing the full potential of India-EU ties require pragmatic solutions to differences on economic issues, thereby augmenting two-way mobility of talent and regular high-level political engagement। वही बात है, बट उसी को इंग्लिश में दूसरे तरीके से घुमा के बोल दिया। कह रहे हैं कि pragmatic solution मतलब अगर कुछ ट्रेड देखिए, मेन EU को क्या प्रॉब्लम है इंडिया के साथ, देखिए इधर सुनिए। मेन चीज बिटवीन इंडिया एंड EU इज डिसएग्रीमेंट। और प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछता ही है माय फ्रेंड, एक बार पूछा है व्हिच आई हैव गिवन दैट यूपीपीसीएस का, कि BTIA एग्रीमेंट इंडिया इज नेगोशिएटिंग विद US, EU, जापान एंड रशिया, ये 4 कंट्री का ऑप्शन दे दिया। ब्रॉड बेस्ड ट्रेड इनिशिएटिव ये अभी फाइनल साइन नहीं हुआ है, साइन करने में कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जैसे EU इज फर्स्ट वर्ल्ड, इंडिया इज थर्ड वर्ल्ड, राइट? तो टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडिया के अगेंस्ट होगा या इंडिया के फेवर में होगा? व्हाट इज टर्म्स ऑफ ट्रेड? पता है सबको टर्म्स ऑफ ट्रेड कि इंडियन फार्मर से केला वो लोग ले जाता है रॉ बनाना, और उसी रॉ बनाने का चिप्स बना के इंडिया में लोग वापस एक्सपोर्ट करता है। तो जिसका वजह से क्या होता है, केला जैसे बनाना चिप्स के पैकेट में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 केला से ज्यादा नहीं होता है, राइट? सो 2 केले का पैसा हम लोग देते हैं 80 रुपीज, और 100 रुपए में हम ही से वो लोग 12 केला खरीद के ले जाता है विदेश में, राइट? Why we are buying banana chips from foreign? Why we are buying banana chips from Bangladesh? Right? Because of the fact that we are not able to produce banana chips even in our country. ना, यानी मैन्युफैक्चरिंग हमारी कंट्री में खराब है, खत्म है। तो इस चीज से बचने के लिए इंडिया कहता है कि ये जो ट्रेड अगर साइन हो गया तो 0% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा इंडिया का सामान ब्रिटेन में जाने में।
और 0% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा ब्रिटेन का सामान इंडिया में आने में। तो इंडिया को फायदा तो होगा, बट जो एडवांस आइटम्स है उसमें ब्रिटेन बाजी मार जाएगा, राइट? तो इंडिया डज नॉट वांट दैट। और इंडिया का जो पेटेंट रूल है, पेटेंट रूल का मतलब जब भी आप कुछ सामान इंडिया में बेच रहे हैं तो आपको उसका केमिकल फार्मूला देना पड़ेगा। ब्रिटेन इज नॉट रेडी टू गिव दैट। आर यू गेटिंग इट? सो दैट इज व्हाई दिस एग्रीमेंट इज नॉट बीइंग फाइनलाइज्ड। ये अभी भी इसके ऊपर नेगोशिएशंस आर गोइंग ऑन। वेरी सून दिस विल बी फाइनलाइज्ड, but this will be asked in your prelims examination anyway in international relation topic. BTI agreement India is signing with which country? So no country, only European Union overall. अब getting it? इसी तरह के कुछ चीजें हैं जो इन जनरल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना? ये हो गया यूरोपियन यूनियन के बारे में। Now tomorrow we will be finishing up this 2B. कल हम लोग को पढ़ना है इंडिया एंड यूएस। After India and US we will be seeing India and Africa and Latin America, right? Once we finish this, we are covering the entire topic of this part, okay? Rest of the things we have already seen in the past. That is nuclear question and United Nations Security Council. थोड़ा सा हम लोग उसको देखेंगे, but mostly for tomorrow we have India and US, India and Latin America, India and Africa, and basically India and the global South. That will be seeing it tomorrow. Fine. Tomorrow we will be finishing it up. Day after tomorrow we begin with paper 1B, right? That is Indian government and politics with modern history. See you tomorrow. अच्छा, okay, bye.